رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. الحمدللہ. تو تربیت اور پرورش آج کا ہمارا ٹاپک ہے. تربیت اگر ہمیں یاد ہو تو تعلیم کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ تربیت یعنی کہ ایجوکیشن. بیسیکلی ایجوکیشن کیا چیز ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو کچھ سکھایا جاتا ہے اور وہ اس چیز کو سیکھ جائے، اور وہ سیکھ جائے یعنی کہ وہ اس چیز میں کیا ہو جائے؟ قابل ہو جائے. اور وہ قابل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ انسان پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ایجوکیٹڈ کہیں گے بیسیکلی. ٹھیک ہے. تو تعلیم بھی تربیت کا کیا ہے؟ حصہ ہے. اور پرورش کے کس طریقے سے انسان برنگنگ اپ یا پھر جو ہے کیا بولتے ہیں اس چیز کو، کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو رکھتا ہے. بیسیکلی ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو کس طریقے سے پالتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، اور کس کے ساتھ؟ تربیت کے ساتھ، یعنی کہ تعلیم دیتے ہوئے اور سکھاتے ہوئے. اب اس میں معاف کیجیے گا، اس میں دین کی اور دنیاوی تعلیم کی ہم بات نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے آج ڈیولپمنٹ کی، مورلز کی. کس طریقے سے ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ مینٹل ڈیولپمنٹ کرانا ہے ہمیں اپنے بچوں کا. کس طریقے سے ان کے ساتھ اپنا جو ہے کنیکشن اچھا بنانا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. تو اس کیس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا بدلاؤ لے کر آنے ہیں کہ بچہ جو ہے، کیونکہ بچہ تو کچھ سیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں جو بچے کا بیہیویئر ہے جو ہم سکھاتے ہیں وہ اسی سے ہی آتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی تربیت ایسی کر لیں، اپنا سکھانا اور یا پھر اپنی پڑھائی جو ہم اس کو پڑھا رہے ہیں گھر پر. بولتے ہیں نا کہ ایک ماں جو ہوتی ہے ایک بچے کا کیا ہوتی ہے؟ پہلا ٹیچر ہوتی ہے. ٹھیک. تو ہم اپنے طور طریقے، اپنے تربیت کے طریقے کو ٹھیک کر لیں تو ہمارے بچوں کا بھی بیہیویئر کیسا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. کیونکہ بچہ سیکھتا ہے، اور وہ سکھانے کے طریقے میں کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے؟ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے ہم اس کو کیسے لے لیتے ہیں؟ غلط طریقے سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کل کے وقت میں یعنی کہ پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ فون ایڈکشن ہے بچوں کو اتنا. ٹھیک. اس کے کیا نقصان ہیں اور کیا طریقے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے بچوں کو ان سے بچایا جائے یا پھر جو ہے دور کیا جائے کچھ ٹائم کے لیے. تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ اولاد کس قسم کی چیز ہے، یعنی کہ کس قسم کا ایسٹ ہے. ایسٹ کا مطلب سمجھے کہ ایک وہ ہے، مال ہے. مال کا مطلب انویسٹ کرنا ہے اس چیز کے اندر. الحمدللہ. تو رسک ہے بیسیکلی اولاد. تو ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ اولاد ایک رسک ہے، اور رسک میں کیا کرنا ہے؟ اضافہ کرنا ہے. ہر انسان چاہتا ہے نا کہ اس کے رسک میں کیا ہو؟ اضافہ. ایک ایگزامپل لیں گے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جمع کرتے ہیں اپنے لیے بہت زیادہ کیا پیسہ، اور مرنے کے بعد جس طریقے سے وہ جمع کرتے ہیں اپنے پیسے کو، اور ان کے پیسے جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ فائدہ دیتے ہیں ان کے بچوں کو، ان کے آنے والے نسلوں کو، ہے نا. الحمدللہ. لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر انویسٹ کر دیا تو دنیا بھی اور آخرت بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ دونوں کا فائدہ ہو جاتا ہے انسان کو. جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ کا سپورٹ بنتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی مغفرت کی دعا کر کے آپ کے مقام کو کیا کرتے ہیں؟ ایلیویٹ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں. اور اگر تربیت جو آپ نے دی ہے، یعنی کہ جو آپ نے سکھایا ہے اپنے بچوں کو، اگر اس کا اثر آگے کی نسلوں پر چلا تو پچھلی جتنی بھی نسلیں ہوں گی مرنے کے بعد آپ کی، تو آپ کا مقام کیا کرے گی؟ جو ہے بلند کرتی رہیں گی. الحمدللہ. تو انویسٹ کرنا ہے، رسک ہے ایک طریقے سے. ٹھیک. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ امت مسلمہ اس طریقے، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ مال کے ضائع ہونے پر زیادہ غمگین ہیں آج کل، رادر دین کہ ہماری اولادیں کیا ہو رہی ہیں؟ وہ ضائع ہو رہی ہیں. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کی اولاد ضائع نہ ہو، کیونکہ وہی اس کے دنیا کا اور وہی اس کی آخرت میں کمانے کا کیا ہے؟ طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مال پہ زیادہ، مال کے ضائع ہونے میں نہ غم کریں، بلکہ مال جائے تو جائے لیکن اولاد جو ہے وہ نہ چلی جائے ہاتھ سے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے لیے کیا کہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اولاد کو کیا بنا کر بھیجا گیا، اور ان دو ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے جو ہے کیا ہے؟ اولاد کیا چیز ہے. الحمدللہ.
अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह अनफाल में आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान है, और ये कि अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। अब इम्तिहान यानी कि आजमाइश क्या है? टेस्ट, फितना कहा गया है इनको। वालमुल अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा गया? कि फितना है, टेस्ट है, और क्या है? इम्तिहान है। तो इम्तिहान में इंसान को तैयारी भी करनी होती है। इंसान में उसको दिन रात, क्या इम्तिहान में दिन रात इंसान को जागना भी है, फिर अपना पेपर भी देना है, और उसमें लगाना भी है, अपना वक्त भी लगाना है, अपनी मेहनत भी लगानी है, अपना दिमाग भी लगाना है, तब जाकर क्या होता है? रिजल्ट आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम इस तरीके से अपनी औलादों को देखें, अगर बोला जाए तो यहाँ बैठी जितनी भी माएँ हैं, क्या इस तरीके से कभी हमने अपनी औलादों को देखा कि हमें इनमें मेहनत भी करनी है, हमें अपना वक्त भी लगाना है, हमें क्या करना है? हमें हर चीज़ करनी है। नो डाउट हर माँ जो करती है वो बेहतर करती है, लेकिन हमारे तरीके कहीं न कहीं गलत हो जो होते हैं, जिसकी वज़ह से उनका रवैया हमारे लिए क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। फिर इसी तरीके से सूरह तगाबुन की आयत नंबर 15 में कहा, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन। वापस से वही चीज जो है क्या हुई? रिपीट हुई। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है, और अल्लाह के पास बहुत बड़ा सवाब है। यानी कि दोनों ही क्या है? एक ही आयत दो बार कुरान में रिपीट हुई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिपीटिशन का, मैंने बताया था कि कुरान में जब भी कोई चीज रिपीट होता है तो इसको बोलता है एम्फेसिस। एम्फेसिस बेसिकली किस लिए? कि उस चीज पर जोर देना है। किसी चीज को बार बार बोलने का मतलब क्या है? कि उस चीज पर क्या देना? जोर देना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आजमाइश किसके लिए हो गई? अच्छे लोगों के लिए। यानी कि आजमाइश जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या करे? करीब कर दे उनको। तो क्या करीब किस तरीके से होंगे? कि अगर हम अच्छी तरबियत देंगे तो दुनिया में भी उनसे फायदा उठा सकते हैं, और आखिरत में होंगे तो हमारे मकाम क्या होंगे? बुलंद हो सकते हैं। और जो कैसे हैं, जो बुरे लोग हैं, या जिन्होंने तरबियत नहीं दी, या जिन्होंने इस आजमाइश को नहीं समझा, या टेस्ट को अपना पूरा नहीं दिया, अपना 100%, उनके लिए जो है, उनकी औलादें क्या बन जाती हैं? अजाब भी बन जाती हैं। तो हमारी औलाद क्या है? हमारे लिए आजमाइशें हैं, यानी टेस्ट हैं। तो कैसे हम तरबियत करते हैं, ये टेस्ट है हमारा, कि कैसे उन तरबियत करते हैं, कैसे उनके लिए कोशिशें करते हैं, कैसे उनको डेवलप करते हैं, कैसे क्या है? उनको तालीम देते हैं, कैसे उन्हें एजुकेट करते हैं, और इसे कैसे आप छोड़ कर जाते हैं जब इस दुनिया से जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबने अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में जिक्र आता है सूरह नंबर 5 में आयत नंबर 27 से 30 में आता है कि काबिल ने जब हाबिल का कत्ल किया, तो सबसे पहला कत्ल जो है उसी ने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी की वजाहत के लिए सही बुखारी की एक हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में जब तक कत्ल होता रहेगा तो एक हिस्सा गुनाह का उसके नाम पर क्या रहेगा? दर्ज होता रहेगा, क्योंकि वो गुनाह करने वाला पहला कौन था? वो काबिल था। तो औलाद की तरबियत भी एक ऐसी ही चीज है कि अगर अच्छे से कर दी जाए तो उसके आने वाली नस्लों को उसका अजर मिलता रहेगा। और इसका ठीक उल्टा क्या होगा? कि अगर बिगाड़ पैदा हो गया तो उसका उसका जो अजाब है वो भी मिलता रहेगा। यानी कि अकाउंट जो है मरने के बाद क्लोज नहीं होने वाला। क्योंकि अगर हम माल का देखें तो माल हम जितना छोड़कर जाएंगे तो वो खर्च हो जाएगा, हमसे ज्यादा हमारी नस्ल, या हमारी नस्ल से जो पैदा हुई है वो नस्ल क्या कर लेगी? उसको यूज कर लेगी, लेकिन फिर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो तरबियत हमने दी है, जो तालीम हमने दी है, उसका जो है कोई अकाउंट क्लोजिंग नहीं है। अब चाहे तो इंसान अच्छी तरबियत दे, अच्छी सीख दे, और या फिर क्या करे? बुरी सीख देते। अब सवाल ये पैदा होता है कि माँ बाप कब से कब तक तरबियत दें इंसान को, है ना? कब से तरबियत, कब तक जो है क्या देनी है? तरबियत देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो औलाद की तरबियत उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक माँ बाप के ऊपर क्या है? फर्ज है। और या उनकी पैदाइश से हमारी मौत तक, यानी कि माँ बाप की मौत तक क्या है? फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब से कब तक? औलाद की तरबियत उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक। अगर वो तो बाद में मरे और हमें मौत पहले आ जाए, तो उनकी पैदाइश से हमारी मौत तक क्या है? फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजाहत मिलती है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 133 से।
اس کی دلیل ملتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے موت کے واقعہ ہے، جس میں جو ہے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم تھے جب یعقوب کا ان کی موت کا وقت آیا تھا وہاں پر؟ اور کیا تم کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ جو تم کام کرتے ہو، شرک کرتے ہو اور یہ جو حرکتیں کرتے ہو، یہ کیا کرو؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تو یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی برے کام ہیں یہ تو ہمارے ماں باپ دادا نے کہے ہیں، اور ہمارے جو ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم یہودی ہونا، مسلمان نہ ہونا۔ جبکہ یہاں پر کیا تھا کہ اے یہودو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، یعنی کہ ان کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے مرتے وقت اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں شرک میں پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی چیز کر دے کہ مرنے کے بعد میرے لیے خسارہ ہو جائے۔ الحمدللہ، تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ورنہ انسان اگر دنیا کا انسان مر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وصیت نامہ لکھا جاتا ہے، لیکن وہاں وصیت کیا چیز ہے کہ کس کی عبادت کرو گے؟ وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وہاں پر توحید سکھائی جا رہی ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباؤ یعنی کہ آباؤ و اجداد، ابراہیم یعنی کہ باپ اور دادا، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں جو ہے لکھا ہوا کہ مرنے کے وقت بھی کیا ہے؟ تربیت ہے، یعنی کہ آپ کے مرنے تک کیا ہے؟ آپ سکھا رہے تھے کہ توحید پر چلنا، میرے بچوں کس پر چلنا؟ توحید پر چلنا، ایک خدا کی عبادت کرنا، ایک الہ کی عبادت کرنا۔ الحمدللہ۔ تو ہمارا زمانہ کیا ہے کہ ہم ماڈرن بننے کے چکر میں کسی بھی چیز کو کیا کرتے ہیں کہ لائیے وصیت نامہ لے لیجئے، میرے بننے کے بعد میرا فون یہ یوز کر لیں گے، گاڑی یہ یوز کر لیں گے اور وہ یہ یوز کر لیں گے۔ الحمدللہ۔ تو کب سے کب تک کرنی ہے تربیت؟ تو اب یہ دیکھیے کہ ماں باپ کو کب سے کب تک، اولاد کی پیدائش سے الحمدللہ ہمارے مرنے تک، یا اولاد کی پیدائش سے ان کے مرنے تک، جب جس کا جو ہے وقت کیا ہے لکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی بات کریں اگر، تو یہ یعقوب علیہ السلام کا قصہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے کیا ہے مرتے وقت تک اپنے بچوں کو کیا دی؟ تربیت دی، تعلیم دی کہ صرف ایک الہ کی عبادت کیجیے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت لے لیں تو پیدائش سے ہی ان کی تربیت کر رہے تھے۔ پھر بیچ میں کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ پھر بیچ میں جو ہے گھر پر جا کر بھی جو ہے کیا گھر پر جاتے تھے، اگر کسی کو یاد ہو وہ قصہ، جب وہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے اور بیچ بیچ میں جاتے تھے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھتے تھے، تو ایک بار جب وہ گھر گئے تو ان کی بیوی ان کو ملی، اور اسماعیل علیہ السلام کس پر گئے ہوئے تھے؟ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا اور کہا کیسے ہو وہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو شکار پر گئے ہیں۔ تو ان کا کہ کیسی چل رہی ہے یا کیسی نپ رہی ہے؟ تو ان کی بیوی نے بہت زیادہ کمپلین کی اور کہا کہ مشکل سے گزارا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا کیا انہوں نے؟ ناشکری کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی کیا کریں؟ چوکھٹ بدل دیں۔ ٹھیک۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے واپس تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور مجھ سے کہہ کر گئے ہیں کہ میں جو ہے تم کو بدل دوں۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک باپ کے کہنے پر جو ہے کس نے جو ایک بیٹا جو ہے کیا کرے؟ بیوی کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کے نکاح میں ایک ناشکری عورت نہیں رہ سکتی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر دوسرا نکاح کیا، پھر جو ہے واپس سے وہ آئے اور چیک کیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ آ، یہاں پر تربیت کی اگر بات کی جائے تو بیچ بیچ میں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ تربیت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ناشکری کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ پھر جب دوبارہ آئے، پھر واقعی میں کون نہیں تھے؟ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، اور پھر ان کا رابطہ کن سے ہوا؟ ان کی بیوی سے ہوا، اور کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ شکار پر گئے ہیں، اور کہا کہ کیسے گزارا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، جیسا بھی گزارا ہوتا ہے بہت اچھے سے ہوتا ہے اور سب اسی ذات کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ تو پھر وہ آئے اور کہا کہ اسماعیل کو میرا یہ پیغام دے دینا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو جو ہے ایسے ہی رکھیں۔ الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا وہ میرے والد تھے اور کہہ کر گئے ہیں کہ میں تم کو جو ہے نہ چھوڑوں۔ الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سکھانے کا طریقہ ہے، یہ حکم دینے کا طریقہ نہیں۔ تو بیچ بیچ میں کیا ہے؟ یہاں پر بچے کو چیک بھی کرنا ہے، بچے کی ذاتی زندگی میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی چیک کرنا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ ناشکرا ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ تو
अल्हम्दुलिल्लाह क्या करना है कि पहली चीज़ हमें दिख गई कि याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से से कि मरते वक़्त तक क्या दी उन्होंने अपने बच्चों को, तौहीद की तरबियत दी, तो मरते वक़्त तक है। बीच-बीच में भी जो है जब वो अपनी ज़िंदगी में हो जाएँ तो इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि क्या करे, जाकर देखे, क्योंकि ऐसा होता है ना आजकल, क्या करे, शादी करे, छोड़ दिया। बस, कि शादी कर दे, अरे बस अपना रहें, हँसी-खुशी खुशी क्या करें, खाएँ, और हमें मतलब नहीं है, शादी तो दोनों ने की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं पता आपका बच्चा हराम कमा रहा है, आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या कर रहा है, और जब उनके पेट में हराम जाएगा तो हराम नस्लें पैदा होंगी, फिर उनसे उनके आदत बदलेंगे, उनके अखलाक बदलेंगे, और जब अखलाक बदलेंगे तो क्या होगा, गुनाह ही गुनाह क्या होंगे, और फिर उसका अजर किसको मिलेगा, उसकी सज़ा जो है आपको मिलेगी, क्योंकि ये अकाउंट क्या नहीं है, कभी भी क्लोज़ होने वाला नहीं है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। फिर उसके बाद जो है देखिए, उन्होंने कभी भी जो है फिर एक और आया था कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो है क्या बनाना है, उसकी काबे की वो करनी है, तामीर करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब काबे की तामीर के लिए बोला तो आए और अपने बेटे को बताया, कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हुक्म है, और साथ में मिलके क्या किया, काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ में जो है अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है? और कभी भी जो है इंसान को क्या नहीं इख्तियार करना चाहिए, वॉयलेंस कभी भी इख्तियार नहीं करना चाहिए। ठीक है? और एक टाइम में कुछ लोगों को जो है तरबियत का तरीका जो है, गलत तरीका जिस जो कि है, ये इख्तियार कर लिया था या कर रखा था। आजकल तो मारपीट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, कि शायद शायद ही वो कुछ लोगों के लिए सही हो कि ये काम कर दो नहीं तो मार खाओगे, ये काम कर दो नहीं तो क्या होगी, पिटाई होगी। और यही कहा जाता है कि तरबियत तो हमारे टाइम में हुआ करती थी। एक बार पिटते थे और जो है सब याद हो जाता था। तो हम भी क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ वही रवैया करते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसानियत को समझने वाला कोई नहीं है, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर। और उनके तरीके में, तरबियत में मार कहीं भी नहीं थी। आप आखिरी नबी थे, लेकिन आपके तरीके में मार कहीं भी नहीं थी। ये हमें किससे पता चलता है? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ा, उनकी खिदमत में दिया, और कहा कि इसको गुलाम बना लीजिए मेरे बेटे को, यानी कि आप ही के साथ रहेगा तो अच्छी चीज़ें सीखेगा, अच्छे अखलाक सीखेगा, सब कुछ। फिर जो है 10 साल जो है आप वहाँ पर रहें, तो ये पढ़ देते हैं, सही बुखारी की हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। अल्लाह की कसम, उसने मुझसे कभी नहीं कहा, उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा उफ़! उन्होंने कभी सख्ती से नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, या आपने ऐसा क्यों नहीं किया। सुभान अल्लाह! देखिए अब छोटा बच्चा, कितनी गलती हो जाती होंगी ना उनसे। और वालदा क्या थी कि एक ऐसे इंसान के पास छोड़ दी कि आपकी खिदमत करेगा या रसूलुल्लाह, जिसके क्या थे, अखलाक बेहतर थे, जो कि बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड थे, अखलाक में, नोबिलिटी में, किस चीज में, और मोडेस्टी में, हर चीज में, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ नहीं कहा, और कभी ये नहीं कहा कि ये काम ऐसे क्यों नहीं कहा, और ये काम क्यों कैसे किया। तो ये तो खैर किस चीज की बात हो गई कि इंसान को गुलाम के साथ भी ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जो तरीका है, अपने बच्चों को इस तरीके से मारते हैं और पीटते हैं कि कभी कभी तो बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेथड, मारने का और धौंस देने का, वार्निंग्स का, ये क्या है, ये सही नहीं है। हाँ, कुछ पर जो है अगर ये काम कर जाए तो अलग बात है, लेकिन ये तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब वाकया ऐसा सुनने को मिलते हैं कि क्या है, वालिदैन की कुछ बात पर क्या है, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ, तो अगर आपका बच्चा रूम में ही है और नहीं निकलता इंटरनेट से, तो उसके पास तो एक बार जो है आपका चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कहता है कि मैं ऑनलाइन कमा रहा हूँ, तो उसको चेक करना ज़रूरी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये आपका टेस्ट है कि उसकी कमाई कैसी है। और आज की जनरेशन जो चेंज होती है वो कैसे होती है बहनों, 18 मंथ्स के हिसाब में चेंज हो जाती है। क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी 18 मंथ्स में चेंज हो जाती है। जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, जैसे कि हमारे फोन है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसे आ गए, टच स्क्रीन वाले आ गए। अब से 18 महीने पहले अगर देखा जाए तो कैसा फोन था, इससे छोटा फोन था, अलग अलग टेक्नोलॉजी थी। तो हमें भी क्या है, उसको कोप अप करना है, और हमें भी उन्हीं की तरह क्या करना है, सोचना है। अल्हम्दुलिल्लाह, कि ऐसी तरबियत कर सकें कि जो दीनी और आखिरत
आखिरत और दुनियावी एतबार के हिसाब से क्या हो, फायदेमंद हो हमारे लिए भी और हमारी औलादों के लिए भी और उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी। एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दें कि यहाँ पर के दीन पर चलने से आप दुनियावी एतबार में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और ये बच्चों को कहना कि हम अपने बच्चों को कभी भी क्या नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते दीन के लिए, क्योंकि दीन में कभी भी क्या नहीं है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ये जान लीजिए कि इस आयत को बहुत ही गलत तरीके से उठाया जाता है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये उन लोगों के लिए कहा गया कि जो लोग जो है दीन में आना चाहते हैं, यानी कि आप फोर्सफुली किसी को भी मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल किस तरीके से लेंगे कि आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उस एडमिशन लेने में आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर है पूरा। तो इसी तरीके से किसी रिलीजन में आने के लिए कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। तो हाँ, बेशक ये है कि कोई किसी को दीन पर चलने के लिए या दीन अपनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन एक बार अगर आपने उस दीन में क्या किया, एडमिशन लिया, उस कोर्स में एडमिशन लिया, तो उसके सारे रूल्स और रेगुलेशन क्या करने हैं, मानने हैं। यानी कि 75% अटेंडेंस, पूरा कोर्स जो है 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा या 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एग्जाम्स भी देने हैं, फिर फीस भी सबमिट करनी है, कॉलेज उठकर भी जाना है 8 बजे। तो हम क्या करते हैं, दुनियावी काम तो करते हैं, उसके लिए हम जबरदस्ती करते हैं। तो क्या अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये कहा कि तरबियत के लिए जो है क्या जोर जबरदस्ती करनी है, तो हम वो क्यों करते हैं अपनी अकल से ना, ताकि हमारा बच्चा क्या हो जाए, काबिल हो जाए। तो कभी भी ये नहीं कि हमारा बच्चा जो है, हम दीन में जबरदस्ती नहीं करते। ये उन लोगों के लिए है कि आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकते इस्लाम में, है ना। लेकिन आप अगर एक बार मुसलमान हो गए, एक मोमिन होने के जो तरीके पिछली उसमें क्लास में बताए थे, 7 तरीके, एक मोमिन होने के क्या 7 तरीके हैं, उसका मोमिन होना क्या है, जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने पढ़ा था ना, कद अफलाहुल मोमिनून। तो हम कितना भी कामयाब बनाए अपने बच्चों को, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे जब तक वो क्या नहीं होंगे, एक मोमिन नहीं बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अब हम देखेंगे एक 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 करके कि एजुकेशन और इसमें लिटरेट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर किसी स्पोर्ट्समैन को देखे या खेल कूद करने वाले को देखे, तो वो अपने स्पोर्ट्स में एजुकेटेड है। हमें क्या लगता है कि एजुकेशन और लिटरेसी जो दोनों जो है क्या है, अलग अलग चीजें हैं, या फिर दोनों को हमने एक ही चीज बना दिया है। वो कैसे, कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाप दादा जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर आज भी देखा जाए तो घर में क्या होता है कि जब हमारे बाप दादा होते हैं, तो उनसे बेहतर कोई भी क्या नहीं दे पाता है, राय नहीं दे पाता है। तो एजुकेटेड होना और लिटरेट होना, लिटरेट का मतलब क्या हो गया इंसान को, लिटरेसी का मतलब हो गया वो जो सर्टिफिकेट कॉलेजेस में थमा दिया जाता है कि हाँ भाई आपने बीए कर लिया। और आजकल का तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बुरा है, सब कुछ चीटिंग हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, और बच्चा सिर्फ और सिर्फ किस लिए, मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा है, ना कि खुद को कुछ सीखने के लिए। तरबियत वही है, किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्से पर तो इंसान काबू भी नहीं कर पा रहा, तो बहुत बेकार है। लेकिन तो इसका डिफरेंस हम किससे देख सकते हैं कि जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं वो बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं, लेकिन उनके पास कोई डॉक्टोरल डिग्री तो नहीं, उनके पास कोई ऐसी डिग्री तो नहीं, उनके पास कोई ऐसी डिग्री तो नहीं है कि क्या बोलते हैं, जो कि क्या करे, माफ कीजिएगा, जो कि क्या करे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि बता सके कि वो इतने लिटरेट हैं, इतने पढ़े हुए हैं, और जो है इतनी अच्छी सलाह इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पीएचडी की डिग्री थी, उनके पास डॉक्टर की डिग्री थी, नहीं, वो उनकी एजुकेशन है, वो क्या है, वो उनकी तरबियत है। तो यानी कि क्या है, इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है, और हम अपने बच्चों को ना तो एक्सप्लोर करने देते हैं, और ना ही उनको क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि ये तो किसी लायक ही नहीं है। ठीक, अब इंशाल्लाह हम एक एक करके जो है सारे पॉइंट पढ़ेंगे कि इंसान को क्या करना चाहिए। पहली चीज, तरबियत के अब कुछ तरीके देख लेंगे कि इन 10 तरीकों में अगर इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा, तो हमारी औलादें क्या होंगी, बेहतरीन निकलेंगी और अच्छी नस्ल निकलेंगी, और हमारा जो है, हम क्या हो जाएंगे, जो हमारी आजमाइश है ये, हम इस टेस्ट में क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो बच्चों से बात करें, पहला पॉइंट है, और बच्चों की बातें सुने। आज सबसे बड़ा खसारा डिजिटल एज का यानी कि मोबाइल का क्या है, कि हम बात नहीं करते, और बात करते हैं तो सुनते नहीं है। आजकल हर इंसान को जवाब देने के लिए सुनना है, ना कि समझने के लिए सुनना है ना। कोई भी होता है ना, अरे वो ऐसा बोल रहा था तो मैंने ऐसे करके बोल दिया, नहीं, ठीक। क्योंकि जब क्या है, सूर्य बकरा की आयत नंबर 35 से 36 में आता है कि जब आप इब्ने आदम थे, अकेले थे,
तो अकेले नहीं रह सकते, तो फौरन क्या है, हव्वा बना दी गई। इंसानी फितरत है ये कि जब आप बात नहीं करेंगे तो हो सकता है वो इंसान ऐसे लोगों, ऐसी बातों और ऐसे ऐसी जगह में जाए जहां उसका बहुत ज्यादा क्या हो, नुकसान हो। बच्चों की फितरत ये है कि जो उन्हें सुनता है और उनकी बात सुनता है, वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब बाप बाप जो है, देखिए हमारा क्या है इसके अंदर, बाप घर में लौटे हैं, बच्चे अपने आपके पास बैठे हैं, बच्चों ने बोला अब्बा, तो हम लोग भी किस में लगे हुए हैं, फोन में लगे हुए हैं। तो पापा कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, पाप कहेंगे कि हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। और बच्चा जो है वहां पर अपनी बात जो है नहीं कह पाता, फिर वो उसे जाकर कहीं और सुनाएगा। और वो जहां सुनाएगा तो हो सकता है वो उसकी कोई गलत बात है जिस पर रोक लगाई जानी थी, उसको उस चीज का क्या मिल जाए, बढ़ावा मिल जाए। तो आजकल देखेंगे आपके बच्चे जो हैं क्या करते हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा अहमियत देते हैं अपने माँ बाप से ज्यादा, क्योंकि हम उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते। हमें क्या होता है, हम अपने तरीके से सोचने लग जाते हैं। जैसे मेरी एज मान लीजिए कि 50 साल है, तो मैं 50 साल का होकर ना सोचूं, बल्कि किस तरीके से सोचूं कि उस बच्चे का दिमाग किस तरीके से काम कर रहा हो। इंशाल्लाह तो उससे क्या होगा कि एक बातचीत का क्या है, कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा इंसान में। और बात जो है जब सुनी जाएगी तो इंसान क्या करेगा, वहां पर बच्चे क्या करते हैं, पसंद करते हैं, और कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बच्चों से क्या करनी है, बात करनी है। अगर बच्चा कोई कंप्लेन करना है तो सुनना है, डांटना नहीं है। पहले पहले आप सुने, फिर उसको जो है उसके बाद उसके ऊपर काम करना क्या करें, शुरू करें। क्योंकि क्लास में भी क्या होता है, अब जैसे ये वाली ही क्लास ले ले तो हम पहले सुन रहे हैं ना, फिर जब हमारे दिमाग में पूरा सुन लेंगे, फिर जब बहनें क्या करेंगी, क्वेश्चंस पूछेंगी, तब जाके उसका जवाब दिया जाएगा। तो हम क्या करें, पहले सुने। सुनना जो है इंसान को बहुत जरूरी है। तो हमें क्या बनना है, एक गुड लिसनर बनना है बेसिकली। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ काम करके उनको काम सिखाएं। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि उनके साथ काम तो किया नहीं हमने, सिखाया कुछ नहीं, तुमसे धनिया नहीं लेना आता, तुमसे टमाटर नहीं लेने आते हैं, और ये तो किसी लायक है ही नहीं। तो हम खुद से ये पूछें कि हमने किस दिन जाकर अपने बच्चों को ये बताया कि बच्चों देखो ये क्या होती है, ये फ्रेश क्या होते हैं, कि फ्रेश सब्जी होती है और ये थोड़ी खराब सब्जी होती है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लेंगे तो आप ऐसा लीजिएगा। या फिर जो होता है, ये काम इस तरीके से किया जाता है, और नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो ऐसे कीजिएगा। पहले हम सिखाएं, फिर उसके बाद जो है, हाँ अगर वो बच्चा गलती करे और ना ही वो सीखे, तो बेसिकली तरबियत का मतलब तो सिखाना ही है ना। तो हम तरबियत तो कर रहे हैं, बस हम उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, परवरिश कर दे रहे हैं उनकी, कि खाओ पियो। कोई रेंट पर थोड़ी ना रह रहा है हमारे यहाँ पर, है ना। तरबियत का मतलब है क्या करना है, सिखाना है पहले। तो पहले हम सिखाएं, फिर हाँ अगर बच्चा गलती करता है तो तब हम इस काबिल बनते हैं कि हम बोलें। हम क्या करते हैं कि ये तो किसी लायक ही नहीं है, उनको देखो, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप काम करें उसके साथ। सूर्य बकरा की आयत नंबर 125 से 128 में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई कि आप बेटे के पास गए। बेटे कौन, इस्माइल अलैहिस्सलाम। बेटे ने पूछा कि ऐसा क्या, कैसे आना हुआ अब्बा। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह का हुक्म, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है कि काबे की तामीर करनी है। और क्या कहा कि साथ ले गए। और फिर वहां पर क्या आया कि दोनों मिलकर क्या करते थे, काबे की तामीर करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों। यानी कि बाप बेटा मिलकर क्या करते थे, काबे की तामीर करते थे और साथ में काम करते थे। और हम क्या करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं बच्चों से कि हम सिखाए नहीं है, और क्या करते हैं, उनसे पहले से क्या करने लगते हैं, एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। अरे आपको जब, अगर आप किसी को मान लीजिए, कोई मैकेनिक है, कोई मोटर ठीक करने वाला इंसान है जो कि बाइक्स ठीक करता है, कार ठीक करता है, जब तक आप उसको वो काम नहीं सिखाएंगे तो आप कैसे बोल सकते हैं उसको। फिर हमारा जवाब ये रहता है कि हमारे जमाने में तो कोई नहीं था। तो आपको उस चीज को चेंज करना है, क्योंकि आपका जमाना, हम क्या सोचते हैं ना, हम अपनी तरीके से सोचने लगते हैं। हम 50 साल के हैं तो हम अपनी ही तरीके से सोचेंगे, तो सोच को क्या करना है, हमें तोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ पहले काम करें, उन्हें सिखाएं, फिर अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो फिर उनको दोबारा से सिखाएं। कभी भी किसी के सामने क्या ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली चीज हमने क्या देखी, कि पहली चीज तो हमें सुनना है। तो बच्चा क्या करेगा, अगर उसको कोई भी बात करनी होगी तो वो या तो अपने वालिदा के पास जाएगा या अपने वालिद के पास जाएगा, तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो ये जो होता है लोगों के पास,
کہ آج یہ نہیں کر پا رہے، میرے بچہ بات نہیں کرتا ہے مجھ سے، فون میں لگا رہتا ہے، تو آپ نے سننے کی کوشش نہیں کی، تو انشاءاللہ کیا کریں گے، سننے کی کوشش کریں گے، پھر ان کے ساتھ کیا کریں گے، پہلے انہیں سکھائیں گے، پھر غلط کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، سکھائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ، پھر ان کی ضد اور شرارتوں کو کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ اب یہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا، یہ بھی مار پیٹ کرنا ہی ہے بہنوں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے، اسی لیے سیکنڈ سلائیڈ جو ہے یہاں پر ڈال دی گئی کہ مار پیٹ کا جو طریقہ ہے، بیسیکلی کیا ہوتا ہے نا کہ بچہ سیکھتا ہے تو ہمیں سکھا دیں گے نا اگر ہم اس کو کوئی چیز، تو کیا ہو جائے گی، پھر اس کو وہی چیز آئے گی۔ ایک کیا ہوتی ہے، خالی کیسٹ ہوتی ہے، تو خالی کیسٹ میں کیا ہے، ہمیں بھرنا ہے، تو اگر ہم غلط چیزیں بھریں گے، اس کو تانا تراشی کریں گے، تو کل کو وہ وہی چیز کرے گا جو کہ نہیں ہے جائز، جو کہ صحیح چیز کیا ہے، نہیں ہے۔ ضد اور شرارتیں کیسے بڑھتی ہیں، اگر یہ سمجھ آ جائے گا انسان کو، تو کیا ہو جائیں گی، کنٹرول ہو جائیں گی، ٹھیک۔ فار ایگزامپل کہ اگر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے، تو اس کو چپ کرانے کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں کہ اچھا چپ ہو جاؤ تو میں یہ دلاؤں گی، ٹھیک۔ تو پہلی چیز تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرتے ہیں، لالچ دینا شروع کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا ہے، بالکل بھی یہ چیز نہیں کرنا ہے۔ تو اب بچے کے دماغ میں کیا چیز ہو گئی کہ اچھا میں روتا ہوں اور میں یہ چیز کرتا ہوں تو مجھے یہ چیز مل جائے گی، ٹھیک۔ یا پھر اس نے کیا کیا، پبلک میں رونا اسٹارٹ کر دیا، تو آپ نے اپنی بے عزتی کی وجہ سے کیا کیا، وہاں پر اس کو ڈھیر ساری ٹافیاں یا ڈھیر سارے جس بھی چیز کا وہ کیا کر رہا تھا، ضد کر رہا تھا، وہ آپ نے دلا دی، ٹھیک۔ اسی طریقے سے جو ہے باپ کے سامنے اگر بچہ کیا کر رہا ہے، رو رہا ہے یا ضد کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ تو خاندان پر گیا ہے، تو اب بچے کو اس میں فخر آنے لگتا ہے کہ اچھا تو خاندان پر میں گیا ہوں، تو آئی تھنک مجھے یہ چیز زیادہ کرنی چاہیے، تو ہم ہی وہ چیز بھر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے اندر کہ نہیں نہیں چپ ہو جاؤ، نہیں نہیں میں یہ دلا دوں گی تو آپ رو مت، تو انسان اب اس کو کیا لگا کہ میں روں گا تو مجھے اور زیادہ اچھی چیزیں ملے گی، اور میں اور زیادہ روں گا تو مجھے اور زیادہ اچھی چیز ملے گی، ہے نا۔ تو کیا کریں کہ جب بھی کوئی بچہ ضد کرے تو بول دیں اس کو، بیٹا اگر آپ ایسے کرو گے تو میں نہیں دلاؤں، بالکل، تاکہ اس کو یہ پتا چل جائے کہ اس کے اس رویے سے، اس کی اس ضد سے کام نہیں بننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا، کنٹرول ہوں گی چیزیں، ٹھیک، تو وہ زیادہ کرے گا، اور اگر کیا ہوگے، اگر ہم اس طریقے کے کیا کریں گے، جملے پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، ہم کوئی دوسرا روتا ہے تو ہم کیا کریں، ٹینشن نہیں لیں اس چیز کی کہ کوئی دوسرا انسان رو رہا ہے، تو ہمیں بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے کہ بھائی ہم بیٹھ جائیں گے، آپ روئیے یہیں پر، جب آپ کا رونا ختم ہو جائے گا ہم تب جائیں گے، ایسے رو کر جو ہے چیزیں نہیں ملتی ہیں، آپ اپنے ابا سے مانگیے اور اچھے سے مانگیے، تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جب اس بچے کو وہ تربیت دی جائے گی تو وہ اپنے باپ سے جا کر کہہ سکتا ہے، ہر چیز میں ضد نہیں کرے گا۔ اور بچے بھی یہ کیا بلیک میل کرنا یہیں سے سیکھتے ہیں، آج کل آدھے سے زیادہ بچے کیا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یا پھر جو ہے میں کالج ٹرپ پر جا رہا ہوں تو میں ایسا کر لوں گا یا ویسا کر لوں گا، تو یہ سب کس چیز سے سیکھا انہوں نے کہ میں روؤں گا تو مجھے اور زیادہ کیا ملیں گی، چیزیں اچھے سے ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا لاڈ پیار کیا کرے، ان کو نہ بگاڑے، ہمارا لاڈ پیار کس چیز کے لیے ہو، ان کی تربیت اچھی کرنے کے لیے ہو انشاءاللہ، کیونکہ بچے جب بیمار پڑتے ہیں تو کڑوی دوائی کھلائی جاتی ہے نا، ٹھنڈی آئس کریم نہیں دی جاتی ہے ان کو الحمدللہ، تو پرومس کر کے کیا کریں، لے جائیں، اگر جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے تو آپ اسے پرومس کریں کہ میں ابھی نہیں دلاؤں گی لیکن میں ضرور دلاؤں گی تم کو، اور پھر اس پرومس کو آپ کیا کریں، پورا کریں، جب لوٹتے وقت کہیں سے آ رہے ہیں جس چیز کا پرومس کیا ہے وہ کیا کریں، وہ دلائیں، تاکہ بچے کو آپ کے اوپر اعتماد ہو، تاکہ بچے کو آپ کے اوپر کیا ہو، ٹرسٹ ہو، یہ رہے کہ نہیں میری اما کوئی وعدہ کرتی ہیں تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتی، تو وہ چیز بڑے تک، جب بچہ بڑا ہوگا، 18 سال کا ہوگا، 20 سال کا ہوگا، تو کیا رہے گا اس بچے کو کہ میری اما تو دلا دیتی ہیں الحمدللہ، تو بچے کی کیا ہوتی ہے، اپنی بھی ڈگنیٹی ہوتی ہے نا، کہ بچہ کیا کہے گا کہ نہیں نہیں، اگر جیسے ہم کہہ دیں گے کہ تم کو یہاں رونا ہے تو تم رو، تمہاری کیا ہوگی، بہت زیادہ بے عزتی ہوگی تمہاری بھی اور تمہارے ابا کی بھی ہوگی، تو بچہ سوچتا ہے اس چیز کو کہ ارے میں روں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، ایسا ہوگا، تو بچے کی اپنی بھی ڈگنیٹی ہوتی ہے، آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اس طریقے سے بات کریں گی بچوں سے تو اسے لگے گا کہ یار لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اور پھر وہ وہیں پر ہی کیا کرے گا، چپ کرنا بند ہو جائے گا، ٹھیک الحمدللہ۔ اب ہر چیز میں کیا نہیں بولنا ہے، ہر چیز میں نہ نہیں بولنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہر چیز میں نہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری عادت ہے کہ ہر چیز میں نہ بولنے کی، کہ میں یہاں جاؤں نہیں، میں چھت پر جاؤں نہیں، میں یہ کام کر لوں نہیں، میں دوستوں کے ساتھ سائیکلنگ کر لوں نہیں، ہر چیز میں ہم کیا کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں، ٹھیک الحمدللہ۔ اور
फिर उसके बाद क्या है कि अब ये सुन्नत का जो है तरीका नहीं है। ठीक, ये तरीका नहीं है कि हम हर चीज में क्या करें, मना करें, हर चीज में जो है क्या करते हैं उनको करें। और ये देखिए साइकोलॉजी भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहती है, साइकोलॉजी भी आज ये कहती है कि अगर आप ना कहते हैं किसी चीज के लिए तो क्या होता है, इंसान के अंदर रिवर्स साइकोलॉजी डेवलप होती है। यानी कि जिस काम से मना करते हैं, कभी देखा ना कि जिस काम से मना करते हैं बच्चा फिर जाकर वही करता है, क्योंकि इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स साइकोलॉजी। और वो वही डेवलप होती है इंसान के अंदर, जिस चीज से ज्यादा रोकोगे वही चीज क्या होगी, होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद अब ये सुन्नत तरीका नहीं है कि हम क्या करें, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक, क्या है, अगर जैसे बच्चा छत पर जाने की जिद कर रहा है और छत पर बहुत ज्यादा धूप है, तो हम बोलें कि बेटा हम जाएंगे, अभी धूप है, ज्यादा है, कम होगी आप जल जाएंगे। तो क्या है, ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आपने क्या कहा, आपने ये नहीं कहा नहीं जाएंगे, आपने कहा हम शाम में जाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बच्चे के दिमाग को क्या लगा कि हाँ हम जाएंगे, ये नहीं लगा कि नहीं जाना। नहीं, जहां पर कोई इंसान सुनता है वहां क्या होता है, वो कभी ना कभी बागी हो जाता है, या फिर उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे क्या है, ना बोल दिया। तो वहां ना तो बोला आपने, लेकिन उसकी शुरुआत जो थी वो कैसी थी, पॉजिटिव थी, कि हाँ हम जाएंगे, लेकिन हम शाम में जाएंगे, बस। तो वहां पर क्या था, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद इस गाड़ी पर जो है क्या बोलते हैं, कोई बच्चा अगर जिद करता है कि मुझे इस गाड़ी में बैठना है, तो इस गाड़ी में बैठेंगे, लेकिन अभी क्या है कि भाई ये साइड स्टैंड पर खड़ी है, या फिर ये जाएंगे, या फिर पापा जब चलाएंगे तो तब क्या करेंगे, या वालिद जब आपके चलाएंगे तो क्या करेंगे, तब आप बैठिएगा। तो आपने ना नहीं बोला कि नहीं यहाँ नहीं बैठना, आपने ये नहीं बोला कि नहीं छत पर नहीं जाना, आपने क्या बोला कि हाँ अब शाम में जाएंगे, अब तब बैठेंगे जब चलेगी ये गाड़ी, है ना। तो उससे क्या है कि बच्चे को ये नहीं लग रहा कि आप हर चीज में क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, वो कहीं और नहीं जा रहा। फिर वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जहां पर उसको हाँ मिले, और फिर वो गलत चीज के लिए भी बोलता है, तो लोग उसे हाँ बोलते हैं, और फिर वो गलत कामों में पड़ जाता है। और फिर गलत काम में पड़ने का मतलब फिर वही है जो क्या है, काबिल और हाबिल के बारे में मैंने बताया, और फिर उसका अजर किसको, हमारे पास ही जाता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि जिस तरीके से हम अपने माल को एक एक करके संजो के रखते हैं, इसी तरीके से हम अपने बच्चों को तरबियत ऐसी दें कि कल को वो हमारे लिए क्या ना हो, खसारे का जो है क्या ना बन जाए, सबब ना बन जाए। इसी तरीके से बच्चे गार्डन में जाने की बहुत ज्यादा जिद करते हैं, तो गार्डन में कब जाएंगे, छुट्टी के दिन जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, वालिद का जो है ऑफिस है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि पापा जो है पैसे कमा कर नहीं लाए। तो बच्चे गौर करते हैं इस चीज पे कि मेरे बाप की बेइज्जती होगी, या मेरे वालिद जो है क्या नहीं करेंगे, घर नहीं चल पाएगा। तो बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हैं, हमें क्या लगता है बच्चे सोचते नहीं है, उसमें अकल नहीं है, उसमें वो नहीं है। अभी जो है एक एग्जाम्पल देंगे, देखिए इस चीज का। ठीक, और क्या है, ऑल्टरनेट दीजिए, हर चीज का इंसान को ऑल्टरनेट देना चाहिए। तो हम नो नो ना करें किसी भी चीज में, उस चीज का ऑल्टरनेट दे दें, है ना, इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से सूरह बकरा की एक मैं आयत जो है यहाँ पर बताऊंगी कि क्या हुआ था कि जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठते, तो आप क्या करते, लोग बोलते जब कुछ उनसे छूट जाता तो कहते राइना। राइना का मतलब क्या होता है कि थोड़ा रियायत कीजिए हमारी तरफ, और हमारा दिमाग नहीं था उस तरफ जो अब आप बोल रहे थे, तो हमें दोबारा से बता दें। फिर अब राइना वर्ड जो था वो यहूदी लैंग्वेज में, जो हैब्रू लैंग्वेज थी, इन लोगों की जुबान में था गडरिया। तो यहूदी लोग आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, राइना राइना बोलकर। अल्लाह सुब्हाना व तआला को बहुत ज्यादा क्या हुआ, गुस्सा आया इस चीज में, और वो डिसरेस्पेक्ट थी एक तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुक्म दिया कि आप क्या करें, कहो उन्जुरना, यानी कि नजरे करम मेरी तरफ फरमाए। तो एक तरफ रोक दिया एक चीज करने के लिए, दूसरी तरफ क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह क्या किया, दूसरी तरफ दूसरा वर्ड दे दिया कि अब ये बोलिए। तो हम भी क्या करें, हर चीज को मना ना करें। तो जब जैसे ये था, छत पर जाएंगे, जाएंगे शाम में जाएंगे, या फिर गाड़ी पर बैठेंगे इस टाइम बैठेंगे, पार्क में या गार्डन में जाएंगे इस टाइम जाएंगे। तो आप मना नहीं कर रहे हैं, आप बस एक ऑल्टरनेटिव दे दे रहे हैं उसका। उसका जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों पर। ठीक है, तो उनकी जिद और शरारतों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। किस तरीके से कंट्रोल करना है वो भी हो गया, हर चीज में जो है ना नहीं करनी है, बल्कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। शुरुआत कैसे करनी है, पॉजिटिविटी से करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। पांचवा पॉइंट क्या है, इनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह।
कैसा? पसंद और नापसंद का क्या है, ख्याल रखिए। तो अब कहेंगे बच्चों की क्या नापसंद और नापसंद होती है, सिवाय इसके वो किसी हराम चीज की तरफ जाना चाहते हो, किसी को तकलीफ देना चाहते हो, और कोई गलत काम करना चाहते हो, तो उनकी पसंद का जो है आप क्या ना करें, एहतमाम ना करें बिल्कुल भी। अब देखिए एग्जाम्पल के बच्चे क्या पसंद करते हैं, तो बच्चा है तो कुछ भी पसंद करता है, लेकिन अगर देखा जाए 6 महीने का एक बच्चा है जिसको हम क्या करते हैं गोद में, वो अपने पहचानने लगता है किसको, माँ और बाप को। 8 महीने का बच्चा अगर होता है, अगर उसका एग्जाम्पल ले, और वो अपने वालिद की गोद में है, और अगर मैं उसे लेना चाहूँ अपने गोद में, तो वो गोद में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने बाप की गोद से वहां आना, मेरी गोद में आना पसंद नहीं करता। तो जब 8 महीने के बच्चे की पसंद है, तो कैसे नहीं 1 साल और 2 साल और 3 साल का बच्चा, तो बहुत ज्यादा उनका ब्रेन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो हम कभी भी ये ना सोचें कि इसकी पसंद और इसकी नापसंद जो है कैसी है, वो ठीक नहीं है। बच्चों की अपनी पसंद होती है। बच्चे क्या है, अपना दिमाग रखते हैं। जब 6 से 8 महीने के बच्चे का इतना पसंद है कि वो नहीं पसंद करता किसी और की गोद में जाना, तो उससे बड़े बड़े बच्चों को हम क्या करते हैं, उनकी पसंदें, उनको बच्चा छोड़कर क्या करते हैं, नकार देते हैं। और हम अपने बच्चों पर क्या करते हैं, हमारी पसंद थोप कर जो है क्या करते हैं कि हम क्या है, हमारे फर्मा बरदार निकले। ठीक। 1 साल के बाद के बच्चों की चीजें और पसंद अगर देखा जाए, तो अगर 1 साल का बच्चा है या उससे थोड़ा सा के बच्चा है, तो कभी उसको क्या दीजिएगा, उसे उससे अगर पूछेंगे कि आपको ये कलर क्यों पसंद है, तो वो ये भी बता देगा कि मुझे ये इसलिए पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, बताते हैं ना बच्चे कि मुझे ये कलर अच्छा, हाँ मुझे इसलिए लगता है अच्छा। तो पसंद का क्या करना है, ख्याल रखना है उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं, डॉक्टर बनना मेरा सपना था, मेरा बच्चा नहीं बना तो अब क्यों बनेगा, इंजीनियर बनना मेरा सपना था, तो वो करेगा। ठीक। पर्दा मुझे करना था इतनी छोटी सी उम्र से, तो अब कोई और करेगा। जबकि पसंद, खैर पर्दे की बात, पर्दे का एग्जाम्पल ना लिया जाए तो बेहतर है। ठीक। हम क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को अपने। ठीक। और एक 3 साल का बच्चा क्या है, ये बता सकता है कि उसे कोई चीज क्यों पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या करें, उनकी पसंद का ध्यान रखें कि मम्मी मुझे ये चीज पसंद है, तो आप वो दिलाएं। उनकी पसंद का ध्यान रखें, क्योंकि आपका टेस्ट है। आपको क्या करना है, आपको अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपनी मुशक्कत देनी है, ताकि जो है एक बेहतर जो है रिजल्ट आपका आ पाए। छठी चीज क्या है, उनको तजुर्बे करने दें, लेट देम एक्सप्लोर। क्या? उनको एक्सप्लोर करने दें। उनकी लाइफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिंदगी, जो छोटे बच्चों का बहुत छोटा। ठीक है। हाँ, आजकल की जिंदगी क्या हो गई है, उठो, खाओ, कॉलेज जाओ, सो जाओ, ट्यूशन जाओ, बस, या फिर थोड़ी देर खेलो। तो हमने रोबोट क्रिएट नहीं किए बहनों, है ना। रोबोट नहीं है, उनमें फीलिंग्स है, उनके दिन बदलेंगे, उनकी आदतें बदलेंगी, उनके रवैये बदलेंगे हमारी तरफ। और वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। हम क्या करें कि उनको एक्सप्लोर करने दें। उनको क्या करें, जब वो सीखेंगे नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि बच्चों को एक्सपोजर बहुत जरूरी है। अगर उनका एक्सपोजर नहीं होगा तो कोई इंसान सीख नहीं पाता। अब एक इंसान बताइए, जिस इंसान ने क्या किया हो, एक की दोस्ती टूटी हो, और एक जो है घर से बाहर ही ना निकला, और किसी ने हमेशा क्या किया है, दोस्ती में ही धोखा खाया हो, तो वो इंसान ज्यादा मजबूत होगा मेंटली और इमोशनली, जिसने धोखा खाया, या वो जो घर से बाहर ही नहीं निकला? ऑब्वियसली वो जिसने जो है क्या किया है, धोखा खाया है, जिसे पता है कि लोगों के चेहरे कैसे होते हैं। तो हम क्या करें, हम उनको एक्सप्लोर करने दें। अब अगर बहुत छोटे बच्चों की बात करें, तो उनका क्या देखें, बच्चा हाथ में अंडा लेता है तो ये मत छुओ, बच्चा हाथ में आटा ले रहा है तो ये मत, हर चीज में हम क्या करते हैं, मना करते हैं, हर चीज में मना करते हैं। तो अब बच्चे को हाथ में अंडा लेने दीजिए, फोड़ देगा वो, तो उसे खुद पता चल जाएगा कि उसकी स्मेल जो है क्या होती है, गंदी होती है, तो अगली बार से वो छुएगा नहीं। और हो सकता है उसका दिमाग उस टाइम क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसके दिमाग में क्या आए, ऐसे क्वेश्चन आए कि अच्छा ये अंडा है, तो ये इसका पीले पार्ट से क्या होता है, इससे बच्चा बनता है, इससे चूजा बनता है। हाँ, चिकन ना, जो छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं, तो इससे ये चीज बनती है। तो क्या है, इंसान का दिमाग क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। उसने एक्सपीरियंस किया क्या, अंडा फूना, तो एक अंडा फूट गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उससे क्या हुआ, बच्चे ने कुछ सीखा, कोई नई चीज अगर वो कर रहा है तो उसे करने दे। हाँ, जब तक उससे किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, या वो कोई हराम चीज की तलब नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज से रोक देते हैं बहनों। और फिर हमारे बच्चे जो है हर चीज में डरने लगते हैं। कल को वो घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी उन्हें कुछ भी बोल देता है, वो नहीं सीख पाते हैं, वो लीडर नहीं बन पाते हैं किसी भी
चीज़ के, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो है 7वां पॉइंट है कि उनको फैसले लेने के लायक बनाएँ। ठीक। फैसला, डिसीजन मेकिंग, अरे बच्चे कैसे डिसीजन ले सकते हैं? हमारा क्या होता है कि तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं आया, क्यों? आप ही तो सिखाएंगे, जब भी तो उन्हें आएगा। आजकल के फैसले कौन लेता है? घर के बड़े लेते हैं। बेटा तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। एक दादा है, उनके पास बस दादा क्या करेंगे, एक डिसीजन लेंगे, और बाकी की दो नस्लें क्या करेंगी, उन्हीं की सुनेंगी और उन्हीं करेंगे। ठीक, किसी से बोल दिया कि बेटा इससे शादी होगी, तो बच्चा अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, छोटा है। नहीं, इस तरीके से जो है नहीं करना। और फिर हम कहते हैं कि तुम तो डिसीजन नहीं ले पाते हो सही से। तुम्हें नहीं आता है किस तरीके से जो है क्या करना है किसी चीज पर। डिसीजन को क्या कहेंगे उर्दू में, किसी चीज पर किस तरीके से डिसाइड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी वो नहीं याद आ रहा है वर्ड। तो क्या है कि कोई डिसीजन लेने का, फिर हम कहते हैं कि लीडर्स पैदा नहीं हुए। लीडर्स कहाँ गए? क्योंकि लीडर्स नहीं बनाया हमने बचपन से, हमने उन्हें फॉलोवर्स बना दिया। दादा को फॉलो करो, पापा को फॉलो करो, मम्मी को फॉलो करो, जैसा मम्मी ने बोल दिया वैसा होगा, जैसा वालिद ने बोल दिया। हम उनके डिसीजन उन पर छोड़े। आजकल कितने केसेस ऐसे सुनने को जो है क्या करते हैं, आजकल कैसे कितने केसेस ऐसे, हाँ, फैसला करना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल कैसे कितने केसेस मिलते हैं ना कि माँ बाप ने क्या किया था, बच्चों को जो वो चाहते थे वो नहीं दिलाई, और बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो डिसीजन हमारे थे और हमने क्या किया, अपने बच्चों पर थोप दिए। उनसे पूछा नहीं, उनकी बात सुनी नहीं। अगर पहला पॉइंट रखें तो हमें सुनना ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम ज्यादा जानते हैं, हम नहीं सुनते हैं, हम अपने बच्चों को डिसीजन नहीं लेने देते हैं। और फिर जब ऐसे केसेस होते हैं तो कहते हैं कि हमने तो कहीं कमी नहीं छोड़ी थी, और वो कमी हम रोज कर रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि हम अपने तरीके से सोचते हैं, है ना। हम क्या सोच रहे हैं, हम एक 45 साल की अम्मा होकर सोच रहे हैं, हम एक 40 साल की अम्मा होकर सोच रहे हैं। और हमारे टाइम में तो ऐसा होता, आपका वक्त और आपके बच्चे का वक्त अलग था। तो क्या किसी ने अगर हराम पैसा कमाया है, तो क्या आप भी हराम पैसा कमाएंगी? या किसी के बच्चे की आपकी तरबियत सही नहीं हुई, तो क्या आप अपनी तरबियत को गलत करेंगी? या फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि इसको टेस्ट दिया गया, टेस्ट कहा गया ना औलाद को, तो अगर किसी ने अपना टेस्ट अच्छे से नहीं किया, तो क्या आप भी नहीं लिख कर आएंगी? हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों में इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि कल को हमें दुनियावी और आखिरत दोनों का फायदा हो सके, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका अजर जो है क्या है, मरने के बाद भी हम क्या कर सकें, उठाते रहें। और क्या है, उनको डिसीजन मेकिंग बनाए, फैसले करने वाला बनाए, ताकि वो लीडर बन सके, ताकि अपना डिसीजन जो है खुद ले सके, ताकि कल को भी वो क्या करें कि किसी और का डिसीजन है वो खुद ले सके। और गलती हो गई तो वो सीखेंगे उस चीज से, तो फिर उसमें क्या होगा, उन्हीं को क्या होगा, सही लगेंगी चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी वही आती थी, ठीक, तो उसके बावजूद भी वो क्या करते थे, मशवरा करते थे, किनसे, सहाबाओं से। ठीक है, लीडरशिप देखना है तो बच्चों को, अगर जैसे हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों को, अगर हमें देखना है कि हमारा बच्चा डिसीजन सही लेता है या नहीं लेता है, तो हम क्या करें, एक बच्चों को 100 का नोट दे दें, और कहें कि बेटा आज मैं देखूंगा कि आज आप इससे क्या खरीदते हैं। और फिर वो बच्चा जाएगा और वो दुकान से कोई चीज खरीदेगा, और फिर वो लेकर आएगा, तो फिर पता है वो आपको कितनी बातें ऐसी बताएगा कि अब्बा मैंने ये सोचा था कि मैं ये लूंगा, लेकिन फिर मुझे ये चीज अच्छी दिख गई, तो मैंने सोचा आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना है, कितनी सही तरीके से वो चीजों को कर रहा है। और उससे क्या होगा, खुशी होगी कि मैं अपना वक्त, अपनी तरबियत अपना सिखा रहा हूँ, तो मैं सही जगह पर लगा रहा हूँ। यानी कि मैं अपने टेस्ट में क्या हो रहा हूँ, मेरी टेस्ट की जो है तैयारी अच्छे से हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जान पाएंगे कि कैसे काम करना है, उसका दिमाग। और वहां से क्या है, अगर मान लीजिए कोई डिसीजन उसने गलत लिया है, तो हम वहाँ इस्लाह भी कर लेंगे कि नहीं बेटा आपने ये काम गलत किया। तो जानने की कोशिश तो करें कि कैसे वो फैसला कर रहा है, या उसके फैसले लेने का तरीका क्या है। नहीं, तुम नहीं करोगे फैसला, हम करेंगे सर। ये बहुत ही गलत चीज है जो कि हम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को क्या करें, फैसला लेने दें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से 8th है, बच्चों से अपना रिश्ता डर का नहीं, कैसा बनाना है, मोहब्बत का बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फॉर एग्जाम्पल के एक जगह जो है, जैसे मान लीजिए शादी में लोग जाते हैं, तो एक तरफ खातून बैठी होती हैं, औरतें होती हैं, और एक तरफ क्या होते हैं, मर्द होते हैं। तो अगर देखा जाए तो किसी वजह से अगर किसी खातून के जो शौहर है वो किसकी मजलिस में चले गए,
औरतों की मजलिस में चले गए, और उन औरतों ने वहां देखा, या फिर सिर्फ उनकी खातून ने उनको देखा, और सिर्फ देखा, तो वो कहते हैं कि अरे माफ करना, मैं गलती से आ गया। तो क्या उन्हें चीखने की जरूरत पड़ी उनकी बीवी को कि आप यहाँ क्यों आ गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं। क्या उन्हें मारना पड़ा कि जाओ यहाँ से, नहीं तो क्या होगा, मैं ये करूंगी, जाओगे नहीं तो मार पड़ेगी तुमको? नहीं, ये कोऑर्डिनेशन है। ये क्या है? ये मोहब्बत है इंसान की। और मोहब्बत कैस क्या है? एक कनेक्शन होता है कि सिर्फ आंखों से देखा कि अरे अरे मैं गलत आ गया हूँ, कि माफ कीजिएगा भाई, मैं क्या हूँ, कि ऐसा ना हो कि मेरी बीवी रुस्वा हो जाए यहाँ पर। तो अपने बच्चों से बताएं कि बेटा आपके ये करने से ना ऐसा होगा, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, इंसान रुस्वा हो जाएगा। तो जब वो इंसान आपसे मोहब्बत करता होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को नहीं करेगा। जब आपके बच्चे को आपके और डर का रहेगा, तो क्या होगा, वो कुछ काम गलत भी करेंगे तो आपसे आकर नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, तो क्या करें, अपने बच्चों से अपना रिश्ता कैसा रखें, डर का ना रखें बल्कि मोहब्बत का रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। नाइन्थ पॉइंट क्या है, कंपटीशन के बदले कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन क्या करें, सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा कोऑर्डिनेशन? सिखाएं। अब देखिए, कंपटीशन सिखा सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हेल्दी कंपटीशन, कि मुझे आगे जाना है। ठीक, ये नहीं कि मुझे इसको पीछे करना है। देखिए, अगर मुझे इससे आगे जाना है और मुझे इस बच्चे को पीछे कर देना है, दोनों क्या है, दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। अब ये नहीं कि मुझे फर्स्ट आना है तो कोई जो मुझसे अच्छा बच्चा है तो मैं क्या करूँ, उसकी कॉपी छुपा दूं या फाड़ दूं या फेंक दूं या गुम कर दूं, ये नहीं है। ये तरीका नहीं होना चाहिए। और क्या करना है, सिखाना है क्या चीज, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन सिखाना है, कि भाई आप कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करें, काम करें, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसा बनाया है, अलग बनाया है। और हर इंसान का जो है किसी चीज को करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है एक तरीका काम करे और दूसरा ना करे, तो कोलैबोरेशन में काम करना क्या है, जरूरी है। तो जो तरीका मुझे नहीं आता होगा वो मेरे साथ वाले को आता होगा, तो मैं एक नई चीज क्या करूंगी, सीखूंगी। तो हम क्या करें, अपने बच्चे को सिखाएं कि बेटा मिल के काम करना है, या तो मेरे साथ मिलकर काम करें या अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करें। कभी भी ये नहीं कि देखो उनका बच्चा उनसे ज्यादा, नहीं, इस चीज में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए इंसान को। फिर जब क्या होता है ना, इंसान चाहता है कि लोग मुझे पसंद करें, तो वो पसंद के चक्कर में ऐसे काम करने शुरू कर देता है कि क्या होता है कि उसके बच्चे ने क्या किया, अभी रिसेंटली एक हादसा सुना था ना, कि बच्चे को पता चला था कि वो फेल हो गया है, तो उसने क्या किया कि जो कार्ड देने वाला था घर पर, पेरेंट टीचर मीटिंग का जो कार्ड देने वाला था, उसी को क्या किया, उसका कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे को डर था। हाँ, तो हम क्या करें, डर का रिश्ता ना बनाए, कैसा बनाए, मोहब्बत का रिश्ता रिश्ता बनाए। और फिर उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन का रिश्ता बनाए इंशाल्लाह। फिर नाइन क्या है, फिर है 10वां पॉइंट है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में ध्यान रखते हुए काम करें। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यही है कि स्मार्टफोन और टीवी और सोशल मीडिया के दौर में सोच समझकर कैसे काम करना है। ठीक है, अब देखिए, बच्चे को पहली बात तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जब से ये कोरोना हुआ या लॉकडाउन हुआ, तो इनका क्या हुआ, एक्सपोजर हो गया इस चीज से, है ना। इन लोग को फोन भी उसी में करना था, क्लासेस भी उसी में जानी है, अटेंडेंस भी उसी पर हो रही है, तो वो यूज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बदले क्या किया जा सकता है, पहले क्या बताएं, कि पहले ये बता दें कि अगर पहले तो एक्सपोजर ना ही करे, लेकिन अब जब सब एडिक्टेड हो गए तो उसके बाद क्या करना है, इसका इलाज ये है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल से ही दूर रख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब आधी से ज्यादा जनरेशन जो है क्या है, इस चीज की एडिक्टेड हो चुकी है ना। इसी वजह से सुन नहीं पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हर चीज गूगल करते हैं। पहले कितनी चीजों की स्पेलिंग आती थी, लेकिन अब गूगल पे क्या करते हैं, स्पेलिंग सीखते हैं। तो ब्रेन क्या हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, इंसान का फैल नहीं रहा है। तो अब नामुमकिन है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि जिस टाइम वो मोबाइल यूज कर रहा है, जिस टाइम वो फोन यूज कर रहा है, तो उसको किस तरीके से, उसका इलाज क्या है, कि उसके घंटे बांध दें। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या कहा, कि 4 साल का जो बच्चा है वो सिर्फ आधे घंटे क्या करे, वो आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को यूज करें। 4 साल के बच्चे, हम अपने 1 साल के बच्चे को, अगर हमें कुछ काम करना होता है किचन में, हम फोन देकर चले जाते हैं। फिर 6 से उससे ज्यादा बड़ा बच्चा है तो क्या करना है, 2 घंटे,
2 घंटे से ज़्यादा उसे स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। और 18 महीने के बच्चे को तो बिल्कुल से स्क्रीन यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखिए 4 साल के बच्चे को क्या करना है आपको, आपको जो है उन्हें फ़ोन से हटा के बड़ी स्क्रीन पर लगा दें। अब बड़ी स्क्रीन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई टीवी ले आएँ और वहाँ नहीं। लेकिन जो एडिक्टेड है, कोई इंसान जो है क्या कर रहा है, दिन में 10 बार झूठ बोल रहा है, तो उससे कल को यही कहा जाएगा कि आप कल के दिन 8 घंटे क्या 8 बार झूठ बोलिए, है ना? फिर आप 5 बार बोलिए, तो कम करने की चीज़ें हैं। ये नहीं है कि भई चलो फ़ोन नहीं है तो आप टीवी खरीद लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल से। बड़ी स्क्रीन अलाउड है बच्चों के लिए, और 6 से बड़े 2 घंटे, और 18 मंथ को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 2 साल तक उसका क्या होता है, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। और ये इस तरीके की आजकल चीज़ें हैं, म्यूज़िक इस तरीके का है बहनों, जो कि इंसान को सैड बना रहा है। या तो इंसान सैड सॉन्ग सुनता है, या फिर बहुत ही जो होता है पार्टी सॉन्ग सुनता है, जिससे उनके दिमाग में तरह-तरह के फितने आते हैं। आप देखेंगे कि जब कोई भी रनर होते हैं तो वो अपने कानों में ईयरफ़ोन लगा के दौड़ते हैं, और जब वो कहते हैं कि गानों के साथ जिम करने में मज़ा आ रहा होता है, तो जब आप एक ऐसा एकदम तड़कता-भड़कता सॉन्ग लगाते हैं तो आप तेज़ भी दौड़ने लगते हैं। तो जब म्यूजिक आपके दिमाग में जाके आपको जोश दिला सकता है, तो वो आपके दिमाग में जाके क्या कर सकता है, आपको नेगेटिव थॉट्स भी दिला सकता है। जब हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो क्या होता है इंसान को, इंसान रोने लग जाता है ना, रोने लग जाता है। पीछे अगर सैड म्यूजिक चल रहा होता है तो ये एक वेपन है जो तैयार किया गया है इंसानी कौम के खिलाफ, कि उसके दिमाग से क्या करे, छेड़छाड़ करना शुरू कर दे। म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि जो इंसान के दिमाग को खत्म भी कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखेंगे कि माँ का क्या रोल है परवरिश में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम एक देखेंगे इसके अंदर इमाम मलिक की स्टोरी, और एक जो है इमाम शाफी की स्टोरी है। तो इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जब छोटे थे तो उन्होंने कुछ गाने वालों को देखा था, और बहुत ही क्या हुए थे, मुतासिर हो गए थे उससे, और कहा था कि मैं तो अब गाने वाला बनूंगा। और उनकी माँ ने ये बात सुन ली और वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान किया कि अगर ये क्या हुआ, गाने वाला बन गया तो मैं क्या करूँगी? फिर उन्होंने एक प्लान किया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाए जैसे कि उल्लामा उस ज़माने में पहना करते थे। ठीक, यानी कि दिखाना शुरू हुआ। तो ये ब्रेन के साथ इंसान क्या कर रहा है कि नहीं, आप ऐसा दिखोगे तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक नकाब वाली है और वो कहीं ऐसी जगह पर जाती है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, नहीं जाता है इंसान कि यार मैंने कपड़े नहीं पहने ऐसे कि मैं वहां जाऊं, होता है ना। तो ऐसे कपड़े पहनाने शुरू किए। फिर वो खुद जाया करती थी और उनको लेकर क्या कहा करती थी, वहां पर इल्म की फजीलत बताई जाती थी, कहाँ मदरसे ले जाया करती थी और बाहर बैठी रहा करती थी कि मेरा बच्चा कब आएगा सीख कर। और वहाँ इल्म की फजीलत बताई जाती थी, इल्म की इम्पोर्टेंस, कि अगर आप इल्म हासिल करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप इल्म हासिल करेंगे तो आपको वो मिलेगा। और इल्म हासिल करना कितना वो है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अब देखिए माँ का इतना वो करना, वहीं वहीं पर ही बैठे रहना, और भी तो काम होते होंगे ना, वहीं पर ही बैठे रहना। क्या करनी है, तरबियत है, ये सिखाया जा रहा है, यानी कि टेस्ट है ना हमारे लिए, तो हम मेहनत करें अपनी औलादों पर, ताकि कल को क्या मिले, अजर मिल जाए इस चीज का, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी थोड़ी ना मुकाम बुलंद होने, ठीक। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका जो है दिल बदल दिया, और वो इमाम बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने क्या लिखी, मुवत्ता एक बुक है ना, जो सही बुखारी से पहले आती है, और सही बुखारी। अब ये देखिए कि एक माँ की कोशिश अपने बच्चे के लिए कितना ज्यादा थी। फिर इसी तरीके से दूसरा वाकया हम देखेंगे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, क्या है, बहुत ही गरीब खानदान से थे और यतीम भी थे, कि उनकी वालदा को बहुत ज्यादा क्या है, क्या करनी पड़ती थी, कोशिश करनी पड़ती थी, और वो उनकी ख्वाहिश थी उनकी कि वो कुछ बने। तो इनका नाम मोहम्मद था। अब जब वो मदरसे गए से गुजरते थे तो कहते थे कि वालदा टीचर फीस मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि कह दो कि फीस नहीं है। तो टीचर ने क्या कहा कि पीछे बैठ जाओ जाकर, है ना, कि वो बिठा देते हैं ना, कोई बच्चा अगर ऐसा आता है कि जाओ पीछे बैठ जाओ, तो बैठते थे। तो इमाम शाफी पीछे बैठा करते थे। और उनकी वालदा रात में निकलती थी और जाकर लोगों के क्या करती थी, घरों में कचरा, फेंका हुआ जो कचरे में कागज होता था वो चुनती थी, और दवात जो स्याही होती है ना, पहले कागज और दवात चलता था, स्याही वो जमा करती थी। वो लिखते थे और स्याही कागज खत्म हो जाता था। तो फिर कहा कि अम्मा कागज और स्याही खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप अपनी मेमोरी, यानी कि अपने जहन पर क्या करो, रिलाई करो, कि बस अब तुम लिख कर याद नहीं करोगे, अब तुम क्या करोगे, पढ़कर याद करोगे। और फिर देखिए अल्लाह का करम ऐसा हुआ, यानी कि हाफिजे का ये उनके हाफिजे का ये राज था कि एक बार
पढ़ते थे तो उनको दोबारा पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक बार अगर ज़ुबानी याद कर लिया, इमाम शाफ़ी बहुत ज़्यादा क्या कहे जाते थे, ज़हीन कहे जाते हैं इस चीज़ में, क्योंकि लिखने का मीडियम ही नहीं था उनके पास। और आजकल क्या है, हम जितनी चीज़ें बच्चों को देंगे ना, उतना ज़्यादा बच्चा उस चीज़ पर रिलाई करने लगेगा। तो बेहतर है कि हम हर आराम की चीज़ ना ला के दें बच्चे को, है ना? घर में बच्चा 1 करोड़ की गाड़ी माँग रहा है तो हम ला के दे रहे हैं, अरे बच्चे के लिए ही तो कमा रहे हैं। नहीं, उसको आराम की आदत हो जाएगी, क्योंकि बच्चे उनको बताएँ कि जो मूवी में, अगर जो बच्चा 3 घंटे की मूवी में देख रहा है कि एक हीरो था और उसने क्या किया कि 3 लोगों को मार दिया या मर्डर कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो अमीर हो गया। ऐसे नहीं है, असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। असल ज़िंदगी में पहले किसान को बीज बोना पड़ता है, फिर उसकी सिंचाई होती है और 6 से 7 से 8 महीने बाद जाके फसल तैयार होती है, और तब जाके कहीं जो है इंसान क्या करता है, पैसा कमाता है। तो क्या है, डिजिटल, अब उसको कैसे पता चलेगी ये चीज़? वो तो यही देख रहा है कि भई गलत काम कर दिया, है ना? कितनी मूवीज़ आती हैं कि मर्डर करना भी अच्छी बात मानी जाती है, और अब जो एक और वो है, गेम है जो कि सबसे ज़्यादा बुरा कहा जाता है, क्या है, पबजी। उसमें लोगों को मार रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, कत्ल-गारत हो रही है, तो उसमें कत्ल-गारत आम है। हाँ? और हम क्या कर रहे हैं, वही खेलना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, और बच्चे घंटों-घंटों उसके अंदर क्या है, लगे हुए हैं। तो अब देखिए इन दोनों माँओं की कोशिशें देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अपने बच्चों के लिए जो लायक था वो ला कर दिया। और फिर जब कोई चीज़ खत्म हो गई तो क्या कहा कि बेटा अब अपने ऊपर क्या करें, रिलाई करें, और दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या बने, इमाम बने। फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद क्या है, कोई अपनी औलादों के लिए दुआ भी करते रहें कि आपको जो है नेक औलाद मिले। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे साले औलाद अता फरमा। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुर वारिसीन। अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे जो है नेक जो है वारिस जो है अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरह सफ़ात की आयत नंबर 100 है, और ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 89 है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भी करते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अच्छी नेक औलाद बनाए अपने माँ बाप के लिए, और हमारी औलादों के लिए भी नेक बनाए, ताकि वो हमारी मग़फ़िरत कर सके, और ताकि उनकी नस्लें जो हैं क्या करें, दीन पर चल सकें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को, और हम सभी बहनों को, हम सबकी औलादों को, और हम जिनकी औलादें हैं, अल्लाह उन सबको नेक बनाए, और हमारी तरबियत का तरीका ऐसा हो जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। उसमें कोई भी, जितना भी आजकल वेस्टर्न और इन सब चीज़ों का कल्चर आ गया हो, उसकी कोई भी ना हो, मिलावट ना हो। जितना भी आज हमने सीखा उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएँ, ताकि जो है हमारी नस्लें सुधर जाएँ, और उसमें कोई बिगाड़ है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत के रास्ते पर लेकर चले जाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर।